So this is a number 46 to 50. This is a Gann number. From where it has come, we'll discuss that later. But if you see, whenever price reach that level, it reverses back, right? Now, first time in a month of July, it reverses from the same level, and then again in the September, same level. So double top pattern is also formed at that level. So this is a resistance number. Now, actually, if you see, this is something not a proven resistance, right? Because the price first time reached that level, there was no previous record of this resistance. In a normal technical analysis, normally we take resistance support as a previous historical support or resistance. Now, in this case, if price is going into uncharted territory, we don't know where is the resistance normally. But Gann provides you some numbers where possibility of resistance. Okay. So this is one number. So we know that if the price is taking resistance here and it made a double top pattern, there is a high probability that this resistance will act and price may come down, and may come down quite fast as well as size in terms of numbers or value. And we saw it's a big fall, right? From 46,000 to almost 41,000, 42,000, so 4,000 points. So can we capture this trade? Is there any mechanism by which we can capture the trade? One is this double top at strong resistance point. So this is one tool, okay, number system. I'll introduce 2-3 tools to understand how Gann methods works. Now let us do one thing. Let us draw Gann fan. How to draw Gann fan? We required a scale, right? And that is a problem. Because if you go on a trading view, here is a Gann fan. This is a tool called Gann fan, right? Now suppose I draw a Gann fan. This was the low. Bank Nifty made a low in March 2022. Suppose I want to draw a Gann fan from here. How to draw a Gann fan? So what we'll do is, there is something called scale, which is required in this tables or in these boxes. So 32,155.33 is our 35 is our value of that point from where we want to draw a Gann fan. Can someone tell me the square root of 32,155? What is the square root of 32,155? What is the square root of 32,155? 179 point something? Correct. Okay. Now we are taking on the upside, right? So we have to add this value to 32,155.35. Just add that value. You get 32.334.67. So we just need to put that value here. We are adding that square root to the value from which we have plotted the Gann fan. So that 179.31 is a scale used for this Gann fan. Since we are taking on the upside, we are going to add that to the value of the point 32,155. So what I get? 32,334.67. Now this is scale is a 1 unit price movement. So we expect, this is a weekly chart. So we expect 179.31 average movement of Bank Nifty per week. This is what the meaning of the scale. So here this 213 is a bar number of this week. So next week has a bar number of 214. Simple, right? If price is moving by 1 unit, then week also moved by 1 unit. These numbers are given by the TradingView software. We have nothing to do it. Okay, this is ready-made given by this bar number. So we just add 1 week. Next week we'll have a 214 bar number. So we put here 214 number. Okay.
and we get the Gann-Fan with a proper scale. Why I am drawing this scale? To explain that point. Now see, this is 1 by 1 Gann-Fan. You might not be much aware of Gann-Fan, but 1 by 1 Gann-Fan is considered as a very powerful support or resistance. Okay, very strong support or resistance. It is a most important line on a Gann-Fan. So if you check it, even the resistance of this 1 by 1 line was exactly at that level. So not only that important Gann number of 46,250, but even the weekly Gann-Fan from the bottom of this March exactly gave the resistance. So this confirms there is a strong resistance at this point. And market may, again I am using the may word because there is no guarantee, but this is a strong resistance, a double top pattern is formed, and two tools, one is Gann number and one is Gann-Fan, suggesting there is strong resistance. So this is a point where a good Gann trade setup is available. Okay, and you may able to capture this entire trade or part of the trade, depend on your understanding. Now when it comes to Gann, this is the only methodology where we talked about not only price but something time value. Okay, Shahji, you said repeat the bar value. Okay, see, when we plot a Gann-Fan, we need two things. One, the scale, or we need actually one thing, scale. Now we are plotting, this is a weekly chart, so we are plotting a weekly scale. So how to get the weekly scale or any scale right now is taking the square root of that price from where we are drawing the Gann-Fan. So we normally plot a Gann-Fan from either a top or a bottom. So this is a low of this entire move has a low here. This is not actually low. Nifty made low here, but Bank Nifty made low here. Okay, so we are taking a Gann-Fan from here. Since we are taking Gann-Fan from this value, we take the square root of this value and add to that same value. ओके राजेश जी, तो उसमें हम लोगों ने Gann-Fan में वो जो वैल्यू था यहाँ पे उसमें वो स्क्वायर रूट ऐड कर दिया. ठीक है, तो 32,155 का हमें स्क्वायर रूट मिला 179.32. हमने 179.32 ऐड कर दिया 32,155 में, तो हमें वैल्यू मिला 32.334. ये हो गया उस नेक्स्ट बार का वैल्यू, प्राइस का वैल्यू, क्योंकि हमने स्केल ऐड की. मतलब एक वीक में 179 पॉइंट प्राइस ने मूवमेंट करना चाहिए बैंक निफ्टी का, ये उसका मीनिंग हो गया. अब एक वीक में प्राइस ने मूव किया तो हमें ये जो बार है इसको भी तो हमें एक वीक से आगे लेना पड़ेगा ना. ये जो प्राइस है ये 213 नंबर का जो बार है जो वीक रिप्रेजेंट कर रहा है उसका है, और ये प्राइस रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट वीक का. तो नेक्स्ट वीक का बार क्या होगा, ये प्रीवियस वीक का बार है, तो नेक्स्ट वीक का बार नंबर क्या होगा, 214 होगा ना, एक से बढ़ेगा ना यहाँ पे बार. ये नंबर हमने नहीं दिए, ये ट्रेडिंग व्यू के नंबर से, लेकिन यहाँ पे इसका नंबर 214 है तो हमने 214 डाल दिया. तो हमारे हिसाब से एक वीक में उतना प्राइस होना चाहिए. वो करेगा नहीं करेगा बात अलग है, स्केल ये बता रही कि भाई एक वीक में इतना होगा. राइट, सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि भाई बार वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वी आर जस्ट टेकिंग 1 वीक अहेड. इफ इट इज अ डेली चार्ट वी आर टेकन 1 डे अहेड, so bar value would have extended by one bar only. Okay, and even if daily we are taken the square root only, और मंथली होगा तो भी स्क्वायर रूट ही लेंगे, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है. ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई ये यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड सेटअप क्यों था. राइट, सो वी गॉट डबल रेजिस्टेंस, not only a big number 46,250 which is a very powerful Gann number, as well as a 1 by 1 weekly chart resistance was there. So these 2 points are there. Now if you know Gann, there is a time concept. Gann is the only methodology where we not only talk about price but we also talk about time, and we say time is more important than price. तो क्या टाइम आया था यहाँ पे? So is there was a time to
शो सम रिवर्सल और सम गुड मूव, तो वो भी था वहां पे। अगर हम लोग डेली में जाते हैं, 21 सितंबर एक डे होता है जो गान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट्स इक्विनॉक्स, राइट। इक्विनॉक्स तो आपको पता है ना, ये तो नेचुरल फेनोमेना है। गान ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। गान सेड इक्विनॉक्स, सॉल्स्टिस आर मेजर एनुअल डेट्स। तो 21 सितंबर के अराउंड एक टाइम साइकिल आती है। तो ये टॉप कब बना था? अगर हम डेली में जाते हैं तो ये टॉप बना था 15 सितंबर को। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी थी, दिस वाज फ्राइडे। सो लेट अस से 21 सितंबर को अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी, सॉरी हमें क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन, यानी यहां पे टाइम साइकिल भी थी। तो ये सेटअप बता रहा था कि शायद यहां पे एक बॉटम टॉप बन रहा है और मार्केट यहां से नीचे आएगा। अगर आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई होती कि यहाँ पे एक वीकली एंगल का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, एक नॉर्मल टेक्निकल का डबल टॉप भी बना है और टाइम साइकिल भी है, तो शायद आप रेडी होते। और शायद आपने यहां पे ट्रेड लेना नहीं है, एक सिंपल लाइन खींच लीजिए नॉर्मल टेक्निकल की, और जब भी ये लाइन टूटेगी यहां से लीजिए, तो आपने उसको ट्रेड एंट्री करना है। क्योंकि आप सिर्फ टॉप बना इसलिए उतना, अभी हम लोगों को प्रैक्टिस है तो हमें पता है यहां पे क्या हो रहा है, राइट। बट इफ यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट वेदर इट विल क्रॉस और नॉट, ये रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा, वेदर दिस विल रियली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, देन यू कैन टेक अ ट्रेड आफ्टर दैट विद सम रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड। वो चीजें नहीं आप कर सकते निगलेक्ट, आपको देखना है वहां पे ट्रेड सेटअप क्या है, राइट। एंड व्हाट इज माय टारगेट, क्या रिस्क रिवॉर्ड बनता है, so you have to see all this thing. But this is one point where there was a really a good setup and you are directly getting a very good fall. कितना पॉइंट अगर यहाँ पे आपको समझ में आता था तो आप कम से कम, चलो इतना नहीं इतना, नेक्स्ट नंबर में आपको बताता हूं नेक्स्ट नंबर क्या आता है उसका। तो आपका नेक्स्ट टारगेट था 44,890 मिनिमम। तो आपने यहां भी एंट्री की होती कहीं पर प्लानिंग करके, थोड़ा ये रिस्की था क्योंकि गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड सेटअप मिलेगा हमेशा, बट ये पॉसिबल ट्रेड सेटअप था और ये टारगेट फर्स्ट था। और इसके नीचे गया तो नेक्स्ट टारगेट था ये लेवल पे, जहां से प्रीवियसली भी वापस आया था। अगर आप देखेंगे तो ये 2 नंबर 3 नंबर से मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है। जब पहली बार जुलाई से वापस आया, सो फ्रॉम जुलाई इट केम बैक टू 43,570 अगेन फ्रॉम 43,570 इट वेंट बैक टू 46,250 और फिर से यहां पे तो आना ही था उसने। एंड वंस दिस इज ब्रोकन अगेन देयर वाज अ बिग फॉल, राइट। नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, दिस इज अ सीरीज, देयर आर डिफरेंट सीरीज, बट अगर इसका सीरीज देखा जाए it exactly reverse from that zone, sorry। और वहीं पे सपोर्ट लिया है, तो एक पॉसिबल ट्रेड सेटअप था, राइट। सो दीज नंबर्स आई विल डिस्कस, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दीज नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम और वेयर फ्रॉम दीज नंबर्स आर कमिंग। ये फिक्स नंबर्स है, ये फिक्स नंबर्स है, ये नंबर्स आपको पहले से पता है, यू नो दीज नंबर्स। ऐसा नहीं कि मैंने डिस्कवर किए या कुछ, ये फिक्स नंबर्स है गान मेथोडोलॉजी में, तो यू आर ऑलरेडी नोइंग दिस नंबर्स। तो ये बैंक निफ्टी के साथ हो गया, क्या निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ है? तो निफ्टी में भी इसी तरह का पैटर्न बना है। अच्छा एक काम करते हैं, एक एंगल हमने यहां से लिया, एक गान फैन, एक यहां से लेते हैं जो बाद में लो बना है, ठीक है।
सो कलर चेंज कर देता हूं तो हमें पता चले अलग ज्ञान फैन। इसका वैल्यू था 32,290.55, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। वो आता है 179.69, ऑलमोस्ट उतना ही आता है, थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो मैंने अगर 179 इसमें ऐड कर दिए 32,290 में, तो मुझे मिलेगा 32,470, और इसको हम लोग करेंगे 228। अब देखिए क्या हो रहा है, जब प्राइस यहां से रिटर्न आया और एक कंसोलिडेशन जो बीच में हुआ, उसका रेजिस्टेंस उसने कहां से लिया, ये यहां से जो 1 by 1 आया था उसी का रेजिस्टेंस लेके प्राइस ने रिवर्सल दिया है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी उसका रेजिस्टेंस देखिए, टॉप एग्जैक्टली 1 by 1 का रेजिस्टेंस लिया है। तो ये नंबर सिस्टम कहां से आता है, तो ये फिक्स नंबर है, ये मैंने डिजाइन किए हुए नंबर्स नहीं है, ये गान के नंबर्स है, तो दिस विल बी एवरीवेयर। ओके, सो दिस नंबर्स आर एवरीवेयर एंड इट इज अवेलेबल इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो सेकंड हमने देखा दिस एंगल 1 by 1 आल्सो टुक रेजिस्टेंस, एंड सेकंड मूव जो स्टार्ट हुई है, द सेकंड मूव व्हिच आफ्टर कंसोलिडेशन स्टार्टेड अगेन, इट टुक द रेजिस्टेंस ऑफ 1 by 1 एंगल ऑफ द CAN from here. So if you are aware of these two parameters, at least some trade is possible. ऐसा नहीं कि you will capture each and every move and 100%. That is not possible. Because we have to see where the trade setup is, कहां पर है, risk reward बराबर बनता है नहीं बनता है. All these parameters are there. But you get some confidence why you are taking trade. अगर आपको पता है यहाँ पे resistance है तो you know where to take a trade. अगर इसका stop loss लेके मैं अगर trade लेता हूं और मेरा टारगेट अगर ये होता है तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, राइट? सो बेसिकली दीज टूल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेयर देयर इज अ पॉसिबल ट्रेड सेटअप। क्या यहां पे एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है, क्या रिस्क रिवॉर्ड फिजिबल है, अच्छा है, राइट? सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क रिवॉर्ड, मैनेजिंग अ गुड ट्रेड सेटअप। ऐसा नहीं कि अब वहां पे टॉप बन गया तो मैंने इमीडिएटली ट्रेड ले ली। So we have to understand whether there is a good trade setup. So see, you have two possible trade setup. All those two big moves can be captured with this methodology. अगर आपको ये नंबर्स मालूम होते और आपको ये गान फैंस मालूम होते तो you would have captured some part of it. Not entire, लेकिन इसमें शायद आपने 1000 पॉइंट कैप्चर किया तो इसमें 1000 पॉइंट किया, 2000 4000 में से शायद आपने 2000 पॉइंट्स you would have captured out of 4000, which is not bad, right? If you understand the option trading, which is difficult nowadays because of lot of expiries, but futures में तो आप शायद अच्छा ट्रेड कर सकते थे। और ऐसा ही निफ्टी में भी हुआ है। तो ये स्पेसिफिक टू, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी में ही हुआ है, ये मेथडोलॉजी हर जगह काम करती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक ही जगह काम करेगी। निफ्टी के ये नंबर्स थे, 20,250 के जोन से वापस आया है। पहला सपोर्ट देखिए कहां पे लिया उसने, 19,371 पे ही सपोर्ट लिया उसने। तो आपका यहां से यहां तक टारगेट बना था। I'll explain that values. I'll explain कहां से वो values, I'll explain that those values. Okay, from where I have shared that Excel sheet with you on a group. If you downloaded that Excel sheet, we'll explain that Excel sheet. Okay, I shared that GAN Excel sheet with you, a square of 9 on a WhatsApp group. To download that, we'll discuss that. So again, see, Nifty has exactly from 2,250 zone to 19,370 परफेक्ट आया था यहां तक, और अभी ये टूटा तो शायद यहां तक जा सकता है, तो यहां पे आएगा तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा, यहां पे यहां से यहां तक पॉसिबल है, आपको देखना पड़ेगा, राइट? इवन इन निफ्टी इफ यू टेक अ स्क्वायर रूट चार्ट, you'll again see the same thing. आप फिर से अगर निफ्टी में भी अगर आप एक वीकली में जाओगे and you plot GAN fans,
तो आपको सेम मिलेगा। आप यहां से गान फैंस प्लॉट कीजिए, कहां पे था ये, 20 जून को लो था, नहीं 13 जून को 15,183। $15,183.40 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, 15,183.4 का स्क्वायर रूट आता है 123.22। उसको ऐड करना है 15,183 में, आपको मिलेगा 15,306। ये तो सिंपल मैथ्स है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ले रहा हूं और वो वैल्यू में ऐड कर रहा हूं, और ये 228 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर था वो देख लीजिए आप, ये जो सपोर्ट लिया था, जो 19,370 का नंबर भी था और एक एंगल भी था, 1/1 नहीं था, ये 1/2 था, लेकिन सपोर्ट लिया। और उसके बाद जो कंसोलिडेशन के बाद, ये कैंडल के बाद इस कैंडल ने एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस लेके बड़ा फॉल दिया। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे राइट नाउ, यू कैन प्लॉट फॉर इंट्राडे आल्सो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी अगेन दिस एंगल गिवन अप एग्जैक्टली फ्रॉम दिस लेवल एज वेल एज द एंगल। अच्छा, यहां से एक प्लॉट करते हैं मार्च से, देखिए आप, ये कमाल का चीज है। आप अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत पावरफुल मेथड्स है। 16,828 जो मार्च का बॉटम था, और ये ट्रेड हमने लिए है, ये हम लोग को काफी अच्छी तरह से ट्रेड मिले थे क्योंकि उसमें टाइम साइकिल भी थी। 16,828.35 का लो बना था मार्च में, राइट। उसको 129.72 आता है स्क्वायर रूट, और उसको ऐड करूंगा तो 16,958। आप खुद करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहीं से भी नहीं, मैं मैथ्स के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, और गान मैथ्स के सिवा कुछ भी नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं, कोई मैजिक नहीं है। फिर से देखिए 1/1 का रेजिस्टेंस रिवर्स हुआ है कि नहीं, रेड कैंडल, तो ट्रेड सेटअप निफ्टी में भी बना है। टाइम साइकिल तो कॉमन थी, वो सभी के लिए है, निफ्टी के लिए या सारे मार्केट्स के लिए, वर्ल्ड मार्केट्स के लिए साइकिल है वो, कोई हर इंस्ट्रूमेंट के लिए साइकिल है, कॉमन साइकिल थी वो। तो ऐसा नहीं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट पे होगा, ये मेथोडोलॉजी कॉमन है, मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ऑप्शन पे काम करेगा या इस पे काम करेगा या 915 की स्ट्रेटेजी है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आप जो भी ट्रेडिंग चार्ट लेंगे, किसी भी स्टॉक का, कमोडिटी का, करेंसी का, ये मेथड काम करेगी। सो दिस इज समथिंग यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट गिविंग यू स्ट्रेटेजी कि 315 को क्या बाय करना है और 915 को क्या बाय करना है। आई एम टेलिंग यू यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस के, राइट।